This is your guide and trainer Aishwarya Seth, and I wholeheartedly welcome you all to your own channel and India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead tutorials, UGC Online Mantra. So students, here we are providing you complete coachings of different competitive exams all over India like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, Master Cadre, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed and much more we are going to launch on the same channel in the coming future. I started this channel on 1st April 2020 in this lockdown period 2 months back with a mission to impart absolutely free of cost education to those students who can't afford these kind of exclusive courses due to their financial constraints or any other reason. So student, this is our mission and this mission will be successful with your cooperation. So if you are aspirants of different competitive exams, just subscribe this channel, and if you are not any aspirant, then please refer and share this channel to your siblings, peer groups and colleagues and relatives and friends who are real aspirants of these competitive exams and who also want to crack these competitive exams in a good manner, right? So students, in UGC NET paper 1, I have completed 4 topics, different topics, full-fledged. I'm telling you which topics I have covered. That is teaching aptitude, I have covered full-fledged, right? And second one is research aptitude, I have covered full-fledged topic according to the syllabus. And communication, I have covered the full-fledged topic. And in ICT, the 4th topic, that is information and communication technology, I have covered full-fledged. So in UGC paper 1, I have covered 4 different topics full-fledged as per your UGC paper 1 syllabus. So in this video, I will start a new topic of UGC paper 1, right? That is the higher education, right? So this is the 10th unit of UGC paper 1, right, as per the UGC paper 1 curriculum. So in this video I will guide you on the different introduction of higher education and their systems. So let's start with the presentation. स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन आज हम लेके आ रहे हैं, बिल्कुल उसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. लेकिन हायर एजुकेशन होती क्या है? जनरली हम सब ये जानते हैं कि जब हम स्कूल फिनिश कर लेते हैं, स्कूल की स्टडी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम हायर एजुकेशन को गेट करने के लिए हम जाते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में या हायर इंस्टीट्यूट्स में, राइट? बट उसका जो मीनिंग है या हायर एजुकेशन जो सिस्टम है वो पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहाँ स्टैंड करता है और कहाँ पे उसकी जो है पर्टिकुलर जो है इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आ रहा है, ये सबसे पहले जो है जानना ज़रूरी है. ठीक है जी. सो हायर एजुकेशन को जानने के लिए, हायर एजुकेशन के मीनिंग को डिस्कस करने से पहले ये चार्ट देखिए. ये जो चार्ट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट बिकॉज ये चार्ट आपको ये बता रहा है कि पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी जो है डिविजन्स हैं और वो किस किस तरह से जो है वो डिवीजन से बना हुआ है और क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में. ठीक है जी. सो हमारे इंडिया में जो एजुकेशन है बेसिकली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन. फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एजुकेशन, राइट? थर्ड वन इज सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड फोर्थ इज टर्शरी एजुकेशन, राइट? एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड टर्शरी. अब देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये 4 मेन तरह की जो है एजुकेशंस जो हैं वो हैं. बट सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन की, जो बिल्कुल छोटे लेवल से मीन स्क्रैच से शुरू होती है. जब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है, एक स्टूडेंट जो है वो शिक्षा लेने या फिर स्टडी करने अभी स्कूल में बिल्कुल इंसेप्शन करता है, स्टार्ट करता है स्कूल, तो एलिमेंट्री एजुकेशन से स्टार्ट करता है. और एलिमेंट्री में भी 3 तरह की बाइफिकेशंस है. ये हमें बिल्कुल इसको हमें क्लियर पहले करना पड़ेगा, उसके बाद हम हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जाएंगे. तो प्राइमरी, यहाँ पे एलिमेंट्री में प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड मिडल. पेपर में क्वेश्चन आया था कई बार, बहुत सारे मतलब टाइम्स जो है क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और जो नहीं है दैट आप उसको निकालो. ठीक है जी. आपको ये दे दिया जाएगा प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडल, साथ में एक और ऑप्शन दे दी जाएगी जो इसमें नहीं आती. तो आपको अब उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट किसके अंडर है. ठीक है जी. सो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंडर जो है प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडल. अब प्री प्राइमरी जो है दैट इज फ्रॉम नर्सरी टू फर्स्ट.
हमें ये जो स्लैब्स हैं ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि हमने भी आगे जाके जो भी यूजीसी का पेपर देंगे या सीटेट पीटेट का भी पेपर देंगे उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है, सबके लिए जानना ज़रूरी है, सीटेट पीटेट के लिए भी, और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं यूजीसी के कोई भी है उसमें सब में जो है ये हमें ये हमारा बेस है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम पूरे टीचर्स का रिसर्चर्स का एक बेस है, तो ये बेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्री प्राइमरी में नर्सरी टू फर्स्ट, नेक्स्ट फिर लेवल पे जाता है बच्चा फर्स्ट के बाद पढ़ के प्राइमरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे आपका आता है सेकेंड टू फिफ्थ, जितनी भी सेकेंड टू फिफ्थ क्लासेस होती हैं वो प्राइमरी लेवल पे जो है बच्चा उसमें एजुकेशन गेन करता है। थर्ड लेवल आ जाता है मिडिल लेवल, ठीक है जी। पहले प्री प्राइमरी फर्स्ट तक उसने पढ़ा, फिर आगे प्रमोट हुआ प्राइमरी लेवल पे, सेकेंड टू फिफ्थ तक जो है उसने क्लासेस ली, उसके बाद वो मिडिल लेवल पे आगे फिफ्थ से आगे चला गया। जब फिफ्थ से आगे चला गया तो 6 to 8 क्लासेस तक, 6th 7th 8th क्लासेस तक जो है मिडिल एजुकेशन वो ले रहा होता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली, राइट। उसके बाद जब यहाँ पे 8th कर लेता है, जब 8th स्टैंडर्ड पास कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे जाता है, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन कैसे, अब यहाँ तक 8th कर ली, ठीक है जी। सेकेंडरी एजुकेशन में 9th और 10th, दिस इज द 9th और 10th, जो 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाता है। उसके बाद जब 10th का जो है पेपर बोर्ड का एग्जाम दे देता है, आफ्टर 10th जो है वो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक जाता है। एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या आ रहा है, 11th एंड 12th क्लास, 11th और 12th स्टैंडर्ड जो है वो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर आता है। यहाँ इसका मतलब ये है फ्रॉम एलिमेंट्री वी गो टू सेकेंडरी, वी गो टू देन सीनियर सेकेंडरी, और ये जहाँ तक प्री यहाँ से नर्सरी से लेकर, ये नर्सरी से लेकर यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक, नर्सरी से लेकर यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक ये सारी स्कूल एजुकेशन है, स्कूल लेवल एजुकेशन है, ठीक है जी। अब उसके बाद जब वो स्कूल फिनिश कर लेता है, अपना स्कूल का पूरा एजुकेशन अप टू 12th तक जो है वो फिनिश कर लेता है, उसके बाद जो बच्चा जो आगे स्टूडेंट जाता है, लर्नर जाता है, वो लेने जाता है टर्शरी एजुकेशन, वो लेने जाता है टर्शरी एजुकेशन। और टर्शरी एजुकेशन मींस अब वो हायर एस्पेक्ट पे चला गया, अब वो कॉलेज में जाएगा, स्कूल लेवल तक वो उसने कर लिया, अब वो कॉलेज में जाएगा। अब कॉलेज में जाके क्या करेगा, दो तरह की यहाँ पे बाइफिकेशंस हैं। एक आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की इज दिस इज द फर्स्ट बाइफिकेशन, एंड सेकेंड इज वोकेशनल एजुकेशन। टर्शरी एजुकेशन कब शुरू होती है, जब वो स्कूल लेवल सारा पास कर लेता है आफ्टर 10+2, ठीक है जी। तो यहाँ पे टर्शरी एजुकेशन में फर्दर 2 कंपोनेंट्स है, हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। हायर एजुकेशन में भी फिर फर्दर जो है डिविजन्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। हायर एजुकेशन में जनरल कोर्सेज आते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं। ये चार्ट जो है ये फुल फ्लेज चार्ट है आपको ये समझाने के लिए कि पूरा का पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहाँ पे क्या स्टैंड करता है, किसके बाद कौन सा लेवल आता है, कौन सी एजुकेशन आती है, और किस तरह से हम आगे आगे जो है वो मूव होते हैं। ये जो जितने भी फेजेस हैं ये सब टीचर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ में आते हैं, जिन्होंने लर्निंग करनी, आगे जाके हायर एजुकेशन लेनी है, पढ़ना है, ठीक है। ये सबका एक लाइफ का एक फेज़ है, हम सब जानते हैं, लेकिन हमें ये कई बार नहीं पता होता कि कौन से स्टैंडर्ड जो है वो किसके नीचे आ रहे हैं, किसके अंडर आ रहे हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्टैंडर्ड किस लेवल की एजुकेशन के अंडर आ रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ पे टर्शरी के अंडर हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंडर जो है जनरल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन। अब जनरल एजुकेशन कैसे कि जनरल एजुकेशन में जो बिल्कुल जनरलाइज स्ट्रीम्स हैं, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, ठीक है जी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, ये सारी जनरल स्टडीज़ के अंदर जो है हायर एजुकेशन के बीच में जो है आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल मतलब इसका एज द नेम इज डिपिक्टिंग दिस इज द प्रोफेशनल वे, राइट। सो इन प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर्स की डिग्री होगी, इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, ठीक है जी, लॉयर जिसने बनना है वो लॉ की डिग्री करेगा, वो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वो प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो हायर एजुकेशन के अंडर जो है हायर एजुकेशन जो है उसके अंडर जनरल और प्रोफेशनल आ गया, और दूसरा टर्शरी एजुकेशन में सेकंड जो कंपोनेंट है वो वोकेशनल एजुकेशन है। और वोकेशनल का मतलब यहाँ पे क्या है,
वोकेशनल का कई स्टूडेंट्स को मतलब नहीं पता होता, मैं आपको बता देती हूँ। वोकेशनल का मतलब है वो वाले एजुकेशन, वो वाले कोर्सेज जो आपको सीधा ही जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, कि जो भी आप कोर्स करोगे यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन के अंडर, वही कोर्स करके उसी लाइन में सीधा जाके आपको जॉब मिल जाएगी। तो मतलब ये जॉब पाने के लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। वोकेशनल एजुकेशन में ट्रेडिशनल आ गया, न्यू इमर्जिंग ट्रेंड आ गया। वोकेशनल एजुकेशन में ट्रेडिशनल आ गया, न्यू इमर्जिंग ट्रेंड आ गया। ट्रेडिशनल में जैसे अब जॉब पाने के लिए जो ट्रेडिशन सिस्टम था, जो डिफरेंट वोकेशनल एजुकेशन थे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशन में आज से 20-25 साल पहले, आप कह सकते हो 15 से 20 साल पहले ITI कोर्सेज होते थे ट्रेडिशनल में, इफ़ यू रिमेंबर ITI कोर्सेज, ठीक है जी, पॉलीटेक्निकल कोर्सेज इस तरह के, ठीक है जी, स्टिचिंग का कोर्स हो गया, ठीक है जी, वीविंग का कोर्स हो गया, डाइंग का कोर्स हो गया, ये ट्रेडिशनल वोकेशनल एजुकेशन में आता है। और जो आजकल आता है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, जो आजकल आता है दैट इज न्यू एमर्जिंग ट्रेंड। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है डिफरेंट वोकेशनल एजुकेशन में, जो आजकल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस तरह का एजुकेशन ले रहे हैं, वो कौन सा है? दैट इज, उसमें क्या आता है कि आपका जैसे हॉस्पिटलिटी आ गया, टूरिज्म आ गया, इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स आ गया, ठीक है जी, इसमें आपका और जैसे इवेंट मैनेजमेंट आ गया, इस तरह से होम डेकोरेशन का, होम डेकोर का कोर्स हो गया। ये सारे न्यू एमर्जिंग ट्रेंड में आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारा मैंने आपको बता दिया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट कहाँ कहाँ जो वो आ रहा है। और यहाँ पे ये है हमारा टॉपिक हायर एजुकेशन, ठीक है जी। हमारा जो यूजीसी का 10th टॉपिक है हायर एजुकेशन, और यही हमने डिटेल में पढ़ना है। उसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैंने ये चार्ट आपको क्यों समझाया, बिकॉज ये सबका बेस है, पूरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये चार्ट पूरा बेस है, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। कोई प्रॉब्लम आती है इसमें समझने में, कोई आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हायर एजुकेशन के मीनिंग की तरफ, राइट। अब हायर एजुकेशन का आपने पूरा चार्ट देख लिया था कि कहाँ कहाँ क्या स्ट्रक्चर है। अब हायर एजुकेशन जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे। होती क्या है हायर एजुकेशन, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज व्हाट इज़ हायर एजुकेशन, इन विच वी आर टेकिंग डिग्रीज एंड एकेडमिक्स, डिफरेंट प्रोफेशनल डिग्रीज एंड सो ऑन। हायर एजुकेशन हम कहाँ लेते हैं? आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल जो है हायर एजुकेशन का जो एक एस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी में स्टार्ट होता है, हर एक की ज़िंदगी में स्टार्ट होता है। और ये जो मैं मेन पॉइंट्स लेके आई हूँ हायर एजुकेशन के, जो आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं। आप ये समझिए कि यूजीसी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल डिटेल में लिखे हैं। मीनिंग से भी ज़्यादा जो है, अब हायर एजुकेशन का मीनिंग तो सबको पता होता है, हायर एजुकेशन में मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बता दिया था, लेकिन ये मेन पॉइंट्स यहाँ पे आप देखिए, गौर करिए कि हायर एजुकेशन को हम टर्शरी एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हायर एजुकेशन को हम टर्शरी एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। द सेकेंड नेम ऑफ हायर एजुकेशन इज ऑल्सो द टर्शरी एजुकेशन, ठीक है, ये पूछा गया था जी, ठीक है जी, क्वेश्चन में यूजीसी नेट पेपर 1 में, राइट। सेकंड क्या है कि हायर एजुकेशन लीड्स टू द अवार्ड ऑफ एकेडमिक डिग्री, मीन्स कि हायर एजुकेशन लेने के बाद जब हम कोर्स कर लेते हैं हायर एजुकेशन में, जो भी हमने BBA MBA जो भी कोर्स करना है, चाहे वो वोकेशनल है चाहे वो जर्नल है, वो कोर्स करने के बाद हमें एक अवार्ड मिलता है। और वो अवार्ड क्या है? हमारी एकेडमिक डिग्री, जो हमें प्रोफेशनल डिग्री या फिर एकेडमिक डिग्री मिलती है, दैट इज आवर अवार्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द हायर एजुकेशन स्ट्रीम। उसके बाद थर्ड क्या है? ऑल्सो कॉल्ड द पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी क्वेश्चन आया था। हायर एजुकेशन को हम क्या एक और नाम से जानते हैं? पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। और हायर एजुकेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज थर्ड लेवल एजुकेशन। ध्यान से देखिएगा, हायर एजुकेशन के 3 और नाम हैं जो पेपर में ये पूछे गए हैं, ठीक है जी। टर्शरी एजुकेशन का भी हम हायर एजुकेशन को कहते हैं जनरली। फिर हम हायर एजुकेशन को पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं, बिकॉज सेकेंडरी के बाद जो है, स्कूल के बाद वो शुरू होती है, तभी उसको जो हायर एजुकेशन को पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं। एंड थर्ड लेवल एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में क्या है? फॉर्मल लर्निंग आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ये बेसिकली हमारी फॉर्मल लर्निंग हो जाती है। अब +2 तक हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम फॉर्मल जाके आगे जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हमारी जो लर्निंग है वो प्रोफेशनल एज वेल एज फॉर्मल स्ट्रक्चर में चली जाती है। हायर एजुकेशन बिल्कुल फॉर्मल लर्निंग है, ठीक है जी,
फॉर्मल लर्निंग है आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद फॉर्मल लर्निंग का जो फेज़ है वो हायर एजुकेशन का फेज़ है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये डिफरेंट 4 क्वेश्चंस जो हैं आए हुए थे पिछले, मैंने 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं 4 पॉइंट्स। और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि फॉर एग्जांपल पोस्ट सेकेंडरी कौन सी है या थर्ड लेवल एजुकेशन का सेकंड नेम क्या है। तो ये हायर एजुकेशन हो जाए या टर्शरी हो जाए या पोस्ट सेकेंडरी हो जाए या फिर थर्ड लेवल एजुकेशन हो जाए, वन एंड द सेम थिंग। और इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है कि ये फॉर्मल लर्निंग है। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ कि जो हमारा इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड में वो 3rd नंबर पे है। ध्यान से याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे आता है। वो 3rd लार्जेस्ट नंबर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हायर एजुकेशन के मामले में यूएसए आता है, सेकंड नंबर पे चाइना आता है, सेकंड नंबर पे चाइना आता है, और थर्ड नंबर पे जो है हमारा इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम आता है। ठीक है जी। सो हायर एजुकेशन सिस्टम डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशनल डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। अब हायर एजुकेशन में जितने भी स्ट्रीम्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रीम्स हैं, नई भी अपकमिंग स्ट्रीम्स आ रही हैं, लोग जो है एज अ लर्नर्स एजुकेशन ले रहे हैं। जितनी वो एजुकेशन लेंगे तो हायर एजुकेशन क्या करेगा, अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स मीनिंग एंड दीज 4 पॉइंट्स। अब हम चलते हैं द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन। लास्ट में आज का टॉपिक हम करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है कि जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के पार्ट पे, वो कौन कौन सी रूल्स रेगुलेशंस, कौन कौन से एस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन में कहाँ कहाँ लगती हैं, ये उसका एक स्ट्रक्चर मैंने एक रफ सा बनाया ताकि आपको ये पता लग जाए कि कहाँ पे कौन सी पावर है। सबसे पहले इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है कि एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। किसकी कॉन्करेंट लिस्ट? हाँ जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसकी जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें एजुकेशन जो है एक इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है जी, विच प्रोवाइड्स इक्वल पावर टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन दी रेगुलेशन। अब ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में इसका एजुकेशन एज अ एस्पेक्ट वहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफाइड जोन में है। वो क्या कह रहा है कि उसने एज अ कॉन्करेंट लिस्ट में जो आपका फ्रेमवर्क है रेगुलेटरी, उसने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल जो है वो पावर्स दे रखी हैं एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड थ्रू आउट जो है वो चलाने के लिए। ठीक है जी। तो इसमें क्या आ गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, सबसे पहले क्या है, देखिए टॉप मोस्ट लेवल पे है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज स्टेट गवर्नमेंट। किस तरह से रूल्स एंड पॉलिसीज प्रोसीजर कौन क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा मैंने रफ सा बनाया है। ठीक है जी। सो इसके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या आ रहा है जी, इस जोन में सेंट्रल गवर्नमेंट में के जोन में क्या आ रहा है, MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड अदर मिनिस्ट्रीज, जो इसके साथ रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं इक्वल एट पार लेवल की, और इसकी सब्सिडरीज भी हैं MHRD की। वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करती हैं डिपार्टमेंट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि MHRD ही सारी की सारी जो हायर एजुकेशन का जो करता धरता कह सकते हैं या एक हेड कह सकते हैं, जो हर एक पॉलिसी प्रोसीजर हर एक चीज़ बनाता है, प्लानिंग करता है, फ्रेमवर्क सेट करता है, सब कुछ करता है, ये MHRD करता है। ठीक है जी, हायर एजुकेशन का। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो पैरेलल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स एंड काउंसिल ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन आ जाते हैं। डिफरेंट स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है जी। और काउंसिल्स ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन जो काउंसिल्स बने हुए हैं डिफरेंट जो है मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स बने हुए, वो भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, जो गवर्न और मैनेज करते हैं हायर एजुकेशन। स्टेट लेवल पे ये मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल लेवल पे ये बता दिया। और MHRD के अंडर जो है MHRD करता क्या है, MHRD मैंने आपको पहले बताया, MHRD इज दी रेगुलेटरी बॉडी एंड प्रोफेशनल काउंसिल। ठीक है, MHRD जो है इसके अंडर जो है वो रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्रोफेशनल काउंसिल्स जो हैं वो आ जाती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो आ जाते हैं, जैसे कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसे कि AICTE
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये सारा कुछ किस में आ जाता है, ये MHRD की अदर मिनिस्ट्रीज में जो है ये रजिस्टर्ड है, और इसके बिहाफ पे MHRD के साथ कोलैबोरेट करके उसके बिहाफ पे जितनी भी जैसे AICTE है, UGC है, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं जो इसके अंडर आके जो है जितने भी काम करते हैं, कंडक्शन के काम करते हैं हायर एजुकेशन के। ठीक है जी। और यहाँ पे ये पढ़ लिया हमने, यहाँ पे ये पढ़ लिया। एक और कंपोनेंट है, एक तो ये कंपोनेंट है, एक मैंने आपको बता दिया ये कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट आप देखिए स्क्रीन के ऊपर इस तरफ देखिए, ये है एक्रीडिएशन बॉडीज़। इनका भी बहुत अलग रोल है। ठीक है जी। ये जो एक्रीडिएशन बॉडीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल NAAC है और NBA है। एक्रीडिएशन का सबसे पहले आप मीनिंग समझिए कि एक्रीडिएशन होता है कि किसी मतलब हायर एजुकेशन के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देना, उनको जो है वो क्रम में लगाना कि इस साल जो है वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी गई है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम रेटिंग दे रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, किसी को हम रैंकिंग कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं। रैंकिंग रेटिंग यही करती हैं, हर साल करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, हायर इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग करना, रेटिंग देना इनका काम है। ये एक्रीडिएशन काउंसिल्स हैं, एक्रीडिएशन बॉडीज़ हैं, जिसके अंडर NAAC आ जाता है मेनली, और NBA। NAAC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। और दूसरा क्या आ जाता है, NBA, दैट इज़ नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। ये दो मेन बॉडीज़ हैं जो पूरे के पूरे हर साल जो है परफॉर्मेंस चेक करती हैं। ठीक है जी, कि जो नॉर्म सेट किए गए थे उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस कितनी की दी है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने, कौन सी कॉलेजेस ने, तो ये वो रैंकिंग करती हैं। ठीक है जी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स किसके हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के। ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, मैंने आपको रफ से इसलिए बना के बताया है कि कहाँ पे क्या चीज़ गवर्न हो रही है, कौन क्या कर रहा है, और वो कौन जो है वो इंग्रेडिएंट किसके अंडर जो है आ रहा है। सो आज के लिए ही इतना ही। ठीक है जी। और कल जो है मैं नई जो प्रेजेंटेशन लेके आऊँगी, वैसे कल वीकेंड है, वीकेंड में मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट वीक जो है हायर एजुकेशन का हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, जिसमें मैं वो जो एंशियंट एजुकेशन होती है, वैदिक एजुकेशन और ब्राह्मी एजुकेशन, पाली एजुकेशन, वो सारा मैं आपको करवाऊंगी। प्लस उसके साथ और भी बहुत स्ट्रक्चर्स हैं हायर एजुकेशन के, वो आपको करवाऊंगी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तो ये आपको वीडियो अगर लाइक आप पसंद कर रहे हैं तो इसको जल्दी से लाइक करें, इस वीडियो को, मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फ्लरिश करें, शेयर करें, बिकॉज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल चैनल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एट ज़ीरो कॉस्ट मिल रहा है। तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। फुल कंप्लीट कोचिंग्स हम करवा रहे हैं, कोई आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेने के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सारे के सारे पर्पसेस सॉल्व हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।